Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 3 of the chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments of class 12. In this part I am going to discuss reflection of light through a glass slab resulted to lateral shift. This topic is also asked as an activity in the 12th practical examinations of different boards. If a light ray passes through a glass slab, then the emergent ray is parallel to the incident ray. Therefore, angle of emergence and angle of incidence in air is same. That means there is no deviation of light ray when the light ray emerge out of the glass slab. But it is laterally shifted. It is laterally shifted. And it is called lateral shift, which is the perpendicular distance Rn between the direction of original path of light and the emergent ray or emergent light, which is Rs. And E is the angle of emergence, I is the angle of incidence at the top face of the glass slab A, B, C, D of thickness T. When an incident light PQ falls at point Q of the upper face of a glass slab, then refraction takes place at the air glass interface and light bends towards the normal, which is drawn at the point of incidence capital Q. Because when a light ray travels from rarer medium into denser medium, it bends towards the normal because the speed of light decreases. जब कोई आपतित प्रकाश PQ एक ग्लास स्लैब है, कांच की सिल्ली है, आयताकार सिल्ली है, इस पर आपतित होती है, Q पॉइंट पर इंसिडेंट होती है और कांच की सिल्ली ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है T है, तो रिफ्रैक्शन के बाद चूंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर ग्लास इंटरफेस पर, एयर ग्लास का जो सीमांत पृष्ठ है हवा और कांच का सीमांत पृष्ठ AD है, जो कि ग्लास स्लैब का ऊपरी पृष्ठ है, तो यहाँ Q पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ है, आपतित हुई है प्रकाश किरण Q बिंदु पर, और अपवर्तन के बाद रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, इसलिए कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड घट जाता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की अपेक्षा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट फेस पर अपर फेस पर I है, जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है ग्लास स्लैब के अंदर। अब लाइट रे आगे ट्रेवल करेगा QR के लॉन्ग ग्लास स्लैब के अंदर, और फिर ग्लास स्लैब के जो बॉटम फेस BC उसके R पॉइंट पर जाकर के फिर से इंसिडेंट करता है। अब यहाँ चूँकि ज्योमेट्री से ये एंगल R है तो सेम मीडियम है यहाँ से यहाँ तक, मतलब AD और BC जो फेसेस है ग्लास स्लैब का वो सेम मीडियम में है, मतलब अभी तक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है QR के लॉन्ग तो ग्लास स्लैब के अंदर, तो इसलिए ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वह इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा ग्लास स्लैब के BC सरफेस के लिए। ग्लास स्लैब का जो बॉटम फेस BC बॉटम सरफेस, और वहाँ फिर से ग्लास एयर इन पर इंटरफेस है, कांच और हवा का सीमांत पृष्ठ है वहाँ BC बाउंड्री सरफेस है ग्लास एयर का। तो यहाँ पर ये एंगल जो रिफ्रैक्शन R है वह दूसरे फेस के लिए जो बॉटम फेस है ग्लास स्लैब का जो निचला सतह है BC उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री से ये एंगल स्मॉल r है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द अपर फेस ऑफ द ग्लास स्लैब inside the glass slab, and a small r is the angle of incidence inside the glass slab at the point of incidence capital R at the bottom face of the glass slab. After refraction, now light ray travels from denser medium, that is glass, with refractive index is high,
in comparison to air. So glass behaves as a denser medium, whereas refractive index of air is smaller in comparison to glass. So air behaves as a rarer medium. Now at reflection at point R of the bottom face of the rectangular glass slab, light ray now going to travel from denser medium glass into rarer medium, in which a speed of light increases. So angle of refraction or angle of emergence, small e, also increases in comparison to the angle of incidence for the bottom face of the glass slab, which is a small r. Now it is found that angle of incidence at the upper face, at the top upper face AD of the rectangular glass slab, and angle of emergence both are same. Angle of emergence at the lower face, at the bottom face of the glass slab. This is the emergent ray. ये निर्गत किरण है, प्रकाश किरण है, जो कि ग्लास कांच के सिल्ली से होकर के बाहर निकलती है, ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है. तो यहाँ जो निर्गत कोण है, एंगल ऑफ इमर्जेंस स्मॉल ई है, जो कि नॉर्मल यहाँ ड्रॉन किए हैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर, जो बॉटम फेस है ग्लास स्लैब का. तो ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जिसको स्मॉल ई से डिनोट किए हैं. लेकिन यहाँ यह पाया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस माने इमर्जेंट लाइट जो है वह इंसिडेंट लाइट पी क्यू के पैरेलल हो गया. देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो देयर इज नो डेविएशन ऑफ लाइट, बट light ray is shifted. This light ray RS emergent ray is shifted from the original path PQT by distance d, and this perpendicular distance between the direction of original path of light and the direction of emergent light, this perpendicular distance is called perpendicular shift. And we have to derive the formula for perpendicular shift also. इस जो perpendicular shift है उसके लिए फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना है. और इस शिफ्ट को क्या कहा जाता है? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट लाइट के बीच में, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एन इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, जिसको हिंदी में पार्श्विक विस्थापन या पार्श्विक खिसकाव भी कहा जाता है. अब इसके लिए हमें एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन करना है. तो इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हुआ कि जब ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर शेप का है, और तो ग्लास स्लैब से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे जो इमर्जेंट ग्लास स्लैब से बाहर निकलने के बाद इंसिडेंट लाइट पी क्यू के, आपतित प्रकाश किरण पी क्यू के समानांतर हो जाती है. इसलिए वैसी स्थिति में एंगल आपतन कोण आई, जो कि ग्लास स्लैब के ऊपरी सतह पर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ग्लास स्लैब के लोअर फेस पर, बॉटम फेस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है स्मॉल ई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहें या एंगल ऑफ इमर्जेंस कहें, जिसे स्मॉल ई से डिनोट किया गया है. इट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल ई. बोथ आर इक्वल, दैट इज आई इक्वल टू ई. देयरफॉर देयर इज नो डेविएशन ऑफ लाइट, बट दिस इमर्जेंट लाइट इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट थ्रू a distance d, and this perpendicular distance between the original direction of light and the direction of direction of travel of the emergent ray, that is RS, is called लेटरल शिफ्ट. तो लाइट शिफ्ट कर गया, लेटरली शिफ्ट कर गया नीचे की ओर. ओरिजिनल पाथ का जो डायरेक्शन है ये है पी क्यू टी के लॉन्ग, तो उससे नीचे की ओर, उससे जो है साइड वाइज शिफ्ट कर गया, इसलिए इसको लेटरल शिफ्ट कहा जाता है. तो नाउ डिफाइन द लेटरल शिफ्ट. वी कैन डिफाइन द लेटरल शिफ्ट. वी हैव ऑलरेडी डिफाइन लेटरल शिफ्ट. नाउ राइट डाउन दिस the definition of lateral shift. What is lateral shift? Lateral shift is the perpendicular distance. Lateral shift इसको D सिंबल से डिनोट किया है. तो it is perpendicular distance. It is perpendicular distance between the direction of original path of light and the emergent light RS and original path of light PQT. Distance between, it is the perpendicular distance, and वो perpendicular distance कौन है? RN है. RN perpendicular distance है. Perpendicular distance RN between the direction of the original path of light, original
path of light PQT and the emergent direction of emergent light RS, and the emergent light direction of emergent light RS, and this perpendicular distance, that is Rn is equal to lateral shift. In figure Rn is equal to, जो कि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट का जो डायरेक्शन है RS, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट PQT है, और RS जो है इमर्जेंट लाइट का डायरेक्शन है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस Rn को हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट कहेंगे. दैट इज Rn इक्वल टू Rn, और NR भी आप कह सकते हैं, इस डायरेक्शन से ओरिजिनल डायरेक्शन जितना शिफ्ट किया Rn और NR इज कॉल्ड, it is called perpendicular lateral shift. Now we have to derive the formula for lateral shift, expression for lateral shift, expression for lateral shift. Now using the right angle triangle, since Rn is perpendicular to the perpendicular from point R, that is point of incident at the bottom face of the glass slab के या ग्लास की जो सिल्ली है, आयताकार सिल्ली, उसके निचली सतह BC के पर जो आपतन बिंदु है लाइट रे ट्रेवल किया है QR के लॉन्ग ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्ट होकर के, और फिर R पॉइंट पर वह ग्लास स्लैब के लोअर सरफेस पर बॉटम फेस पर इंसिडेंट हुआ है, और यहाँ पर अब इंसिडेंट होने के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट रे अब चूँकि ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करने के बाद एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि R है, ज्योमेट्री से ये R हो गया, चूँकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो सेकेंड फेज के लिए भी ज्योमेट्री से ये अल्टरनेट एंगल हो गया. ये ग्लास स्लैब के अंदर बॉटम फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल r होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस स्मॉल e है. तो लाइट रे जब रेयर मीडियम से एयर ग्लास स्लैब से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में बाहर निकलेगी, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस r से बढ़ जाएगा, और इसलिए लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाएगी, RS के लॉन्ग इमर्ज होकर बाहर निकलेगी, जो कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल है. So now Rn is drawn perpendicular from point R, that is point of incident at the bottom face of the glass slab, to the original direction of light PQT. Therefore, in the right angle triangle PRN, इस समकोण त्रिभुज PNR में, in right angle triangle we have derived the formula for expression of lateral shift, that is for lateral shift whose symbol is D, small d. In the right angle triangle QNR, in the right angled triangle, in the right angled triangle QNR we have ये साइन एंगल, ये साइन ये I माइनस R होगा, इसलिए कि ये एंगल P, ये जो नॉर्मल है यहाँ पर, इसका नाम हम दे दें, ये इसका नाम N1 दे देते हैं, यहाँ N1, यहाँ N2 दे देते हैं, परपेंडिकुलर है नीचे, इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, नीचे तक, इसको यहाँ तक ले गए, ये N2 दे देते हैं इसका नाम, या ऊपर N दे सकते हैं, यहाँ M दे सकते हैं. तो ये जो एंगल है, एंगल PQN N1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द अपर फेस ऑफ द ग्लास स्लैब. तो ये एंगल I और ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होता है, ये तो रिफ्लेक्ट करने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया PQ, लेकिन ओरिजिनली जो है इसका ओरिजिनल डायरेक्शन होता है किधर, PQT के लॉन्ग. तो इसलिए उस सिचुएशन में N1 N2 और PQ2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता. देयरफॉर फ्रॉम द ज्योमेट्री ये I एंड ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक अपोजिट एंगल, वह जो है दोनों सेम होता है. ये I है तो ये भी पूरा I होता है, यहाँ से यहाँ तक I होता, यहाँ से यहाँ तक I होता, लेकिन
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लाइट रिफ्लेक्ट कर गया है इसलिए ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड कर गया है, तो ये पूरा एंगल आई, ये आई है तो पूरा एंगल आई होता ही है, ये पूरा एंगल ये आई हो जाता है उस सिचुएशन में, और ये एंगल स्मॉल आर है तो जो बचा एंगल है रिमेनिंग एंगल ये आई माइनस आर। सो इन दिस ट्रायंगल क्यू, इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन आर वी हैव साइन यहाँ पर सपोज करते हैं साइन आई माइनस आर, तो साइन यहाँ आई माइनस आर लेने पर साइन आई माइनस आर इजकल टू परपेंडिकुलर आर एन अपॉन हाइपोटेनस क्यू आर। इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन आर वी हैव साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आर एन जो कि लेटरल शिफ्ट है लाइट रे का, ओरिजिनल डायरेक्शन से लाइट रे जितना शिफ्ट कर गया है लेटरली, आर एन अपॉन क्यू आर एंड आर एन इज डी विच इज द लेटरल शिफ्ट जिसका कि एक्सप्रेशन हमें मालूम करना है, डी अपॉन क्यू आर, देयरफॉर लेटरल शिफ्ट डी इजकल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर। This is equation number 1 and this is also lateral shift but in term of QR. In term of QR and this distance QR is not known but this distance QN2 is known and this distance is T, thickness of the glass slab. तो हम QR को जो डिस्टेंस QR है ऑब्लिक डिस्टेंस जो कि रिफ्रैक्टेड लाइट है ग्लास स्लैब के अंदर, इसको T के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, T के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो कि फाइनल एक्सप्रेशन होगा लेटरल शिफ्ट का। तो इसके लिए इस ट्रायंगल को ये जो नॉर्मल है N1 N2, N1 जो नॉर्मल है N1 यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो N1 N2 को थोड़ा सा N1 को माने इस नॉर्मल को थोड़ा सा यहाँ तक मीट कर दे, लोअर सरफेस तक इसको ग्लास स्लैब के जो बॉटम फेस है वहाँ तक ले गए, तो N1 N2 नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर के बीच का जो एंगल है ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइट से रिफ्लेक्ट की है एलॉन्ग क्यू आर, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल है N1 N2 या कहें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q से N2 का जो वर्टिकल लाइन, तो इसका जो इंक्लिनेशन है मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन का रिफ्लेक्टेड रे से जो इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो कि क्या है स्मॉल आर है। तो अब इसमें कॉस आर हम सपोज करते हैं, कॉस आर इज इक्वल टू बेस, तो इस सामने का साइड तो ये एंगल आर लेने पर ये सामने का साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा QN2 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा QR। अब उस प्रकार QR का वैल्यू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, QN2 इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जो कि T है, तो उस टर्म में वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा QR का वैल्यू T के टर्म में, और उसको हम सब इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लेटरल शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन है वह मालूम हो जाएगा जो कि कैसे ऑब्टेन हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब के कारण। तो ये डी लेटरल शिफ्ट ही है, लेकिन ये अभी हमको इसको T के थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के रूप में फाउंड करना है, लेटरल शिफ्ट, और लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट डी इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर। अब क्यू आर को थिकनेस के रूप में एक्सप्रेस करना है। नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल QN2R to find QR in terms of thickness T of the glass slab, we have in triangle QN2R, in triangle which is also a right angle triangle QN2R, we have cos r equals to base upon hypotenuse, base is QN2, hypotenuse is QR, QN2 बेस है, आधार है, और QR हाइपोटेनस जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है QR। बेस इस ट्रायंगल का QN2R का बेस हो गया QN2 और हाइपोटेनस कर्ण हो गया QR, और सामने का R के सामने का जो साइड है N2R वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो QN2 इज T, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज AB इजकल टू QN2 इजकल टू T, thickness of the glass slab upon QR, where T is the thickness of the glass slab, T is thickness of the glass slab,
थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कांच की जो सिल्ली है ABCD आयताकार सिल्ली, उसकी मोटाई है। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज T। देयरफॉर QR, अब देखिए QR का जो वैल्यू हो गया, QR ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। इस लाइट का के पाथ का लेंथ जो है वह QR को हम T के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब QR इजकल टू T अपॉन कॉस आर। QR कॉस आर नीचे चला आएगा, QR को ऊपर कर दीजिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो QR इजकल टू T अपॉन कॉस आर। अब QR का वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। QR इजकल टू T अपॉन कॉस आर। अब QR ग्लास स्लैब का थिकनेस T और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r, ग्लास स्लैब के अंदर अपर फेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r है, जो कि लोअर फेस के लिए, बॉटम फेस के लिए रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है फ्रॉम द ज्योमेट्री, अल्टरनेट एंगल। तो अब QR को हम जो कि रिफ्रैक्टेड लाइट का, ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्टेड लाइट का पाथ लेंथ है, तो उसको हम थिकनेस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं। एक्सप्रेस माने हमने पाया ट्रायंगल में कॉस आर का वैल्यू, कॉस आर लेने पर, तो QR इजकल टू T अपॉन कॉस आर। अब इसका QR का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में। QR इजकल टू T कॉस आर इन इक्वेशन 1। इन प्लेस ऑफ QR वी कैन राइट T अपॉन कॉस आर in equation 1 to find the final expression for lateral shift of the light ray from the original direction of light. So putting QR is equal to T cos R in equation 1, that is using equation 2 in equation 1, or putting QR is equal to T cos R in equation 1, using equation 2 in equation 1, we get D is equal to QR, which is T upon cos R multiplied by sin I minus R, that is finally we can write is equal to T sin I minus R upon cos R, and this is equation number 3, which is the final expression for lateral shift of the light ray after refraction through a rectangular glass slab. This is the final expression. D is equal to T sin I minus R upon cos R. R is the angle of refraction at the inside the glass slab during the refraction at point Q, that is upper face of the glass slab, and I is the angle of incidence in air, that is at the air glass interface, that is upper face of the glass slab, and T is the thickness of the glass slab. So this is the expression for equation 3 is this is the expression for lateral shift. D lateral shift का symbol है. This is the expression for lateral shift. और इस लेटरल शिफ्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट में भी, एग्ज़ाम में भी ये एक्टिविटी एज एन एक्टिविटी इसको करने के लिए कहा जाता है। लैब में, एग्जामिनेशन में, डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी एक्टिविटी दिया जाता है, क्रियाकलाप। तो एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है लैब में, तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी आ सकता है बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में। और इसी के साथ ये पार्ट जिसमें केवल हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब रिजल्टेड टू लेटरल शिफ्ट, उसका स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच। और अगले पार्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना जो कि डेली लाइफ में भी जिसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में, दैट इज पार्ट 4 में। थैंक यू वेरी मच।